बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद, बहुत सी रहमतें और बरकतें हमारे लिए रमज़ान लेके आया है और इसमें हमें बहुत सारा मैसेज भी मिलता है। जैसे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उन तमाम खसूसियात के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता वो जर्नी, जब तक कि हमारे अंदर वो तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो जो कि जिनकी के रमज़ान भी हमें मैसेज देता है। तो रमज़ान हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो जब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मेरे ये कहने का क्या मकसद है। जैसे हम लोग अगर सब्र शुक्र की बात करते हैं तो हमें रमज़ान जो है वो सबसे पहला दर्स ही सब्र शुक्र का देता है। और अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो सब्र शुक्र का है। यानी कि आपने जो आपके वसाइल हैं, जो महदूद वसाइल हैं, उसमें किस तरह से आपने सब्र और शुक्र का मुज़ाहरा करते हुए अपने काम को आगे लेके बढ़ना है। आज का जो हमारा सेशन है, पहले तो मेरे पास सबा आबिद की एक आई हुई थी जी, सबा आबिद की आई हुई थी एक प्रेजेंटेशन जिसको कि हम लोग शेयर करेंगे और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू पिच योर बिजनेस आइडिया। आप सब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस मुझे बना के भेजी, जितने लोगों ने भी हमारे साथ शेयर की थी अपनी प्रेजेंटेशंस, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अब मैं आपको एक टेम्पलेट बताऊंगी कि उसको आपने जब भी आपको कोई ये कहे कि अपना बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस पिच आप अपनी बना के दें या बिजनेस आपका जो भी मॉडल है उसको बना के दें, तो वो आपने उसको किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए फॉलो करना है। तो इससे आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी इसके बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। Why I have chosen Oriflame? Oriflame is the largest beauty company that is working till now, and the main focus was that it has no outlets. It just distributes its products to the members, and we, the resellers, further give the products to the customers. The second reason was to be a consultant. More than 3 million consultants are present around the world that are reselling their products. Number 3, products. Over 900 cosmetic products are being sold all around the world, and their products are reliable, proven, and tested results. Presence. Available in more than 62 countries and is still growing. Next, ma'am. Next. Targeted audience. Number first factor in engaging audience was drivers. First, customer is attracted to the price. If there are reasonable prices, the customer buy the products. Second was the value. The customer should know about the value of the product. Number third was the brand name. If the brand is famous or known, then the customer is attracted to the product. Number third was gender ratio. 60% of the women are interested in this product, as it is mostly the female cosmetics are present, and 40% men are also attracted because 40% or a little bit of men's product are also available in this. Now, age-wise, 15 to 25 age factor, 26 to 35, 36 to 45, and 46 plus products are available for every age group. Number second is men. The same age products are also present for men. Next, ma'am. My business model. My business model is that first I will become an Oriflame consultant, become their member, and make money. Number one, by saving on the purchase of Oriflame products. It means that I will first purchase their products at a discounted level. Next was by showing catalog to as much audience that I can and earn discount on my sale. When I will show catalog to many people I can, I will earn business points through which I will earn discount on my sale which I purchase. Number third was by creating awareness. Number third is by creating awareness among a large number of audience by telling them about the cosmetics. Next, ma'am. Our team. My team is not yet decided, but I have my khala who is already a member and a senior member who is the director of Oriflame. She guides me in my business plan and strategies. Number one, my strategy was that to create awareness
about wide variety of products to a larger audience by showing them catalog, flyers, products. Offer those products first that are more in demand, means what the customer wants, their desired products, that should be shown them first so that they are attracted to it. Sales, uh, earn as much business points as I can by sales so that I also earn a discount on my sales. Next, ma'am. Okay, no, before discussing next, I would like to add something into this because you have mentioned strategy and products and sales. That it does not show your team, okay? So to show your team, you should use the term market strategist, okay? Not strategy. Products इसकी जगह पे आएगा suppliers, ठीक है? Sales की जगह पे आएगा आपका marketing manager या कुछ इस तरह का जो sales person होगा. So when you are talking about our team, you should use these terms, not strategy and products and sales, because this you can add it as business strategy, but not as a team. So this slide is slightly, you have to change this slide, okay? Yes, business strategies. My business strategies would include number one, word of mouth, that I would convey as much to a larger audience by showing them products, catalogs, giving free samples and gifts. Number second is showing catalog to a larger number of audience and explaining them about the products, showing them proven results by making them test the products. Number three is promoting through different social media platforms. I have created a Facebook page for it, an Instagram page for it, and continuously posting on it and explaining that what would be the benefits of using the Oriflame products. Number four is attracting customers by showing them feedbacks. I would attract customers by showing them responses of different customers that have used the products, and advertising a lot, advertising by making brochures, business card, flyers, and giving the customers free samples or gifts with the order they purchase. Now, understanding the market. I will take in consideration the following factors while doing business. Number one, competitors. I will try to make the quality of my product as much good that it is best from the competitors. Realistic expectation. I won't expect at the start of my business to boost as much. I will just start from baby steps. SWOT analysis. I will identify my strengths for my business, that what should I do to make my business boost as much as it can. Weaknesses, that what factors do play and what factors cause a decline in my business, that why don't my business go towards the road of success. Opportunities, that I will avail as many opportunities as I can for my business. Like in Ramadan, I will offer discounts, affordable prices to customers so that they can buy products. Threats and risks involved in business are that, like this pandemic, I will try to avail as much customers through the different social media platforms. Now, coming back to your presentation, first of all, you have chosen Oriflame. ठीक है, Oriflame जैसा कि सबको पता है कि ये एक स्वीडन की कंपनी है, ठीक है, हम में से बहुत से लोग इसके प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं. बट सबा माय क्वेश्चन इज कि स्टार्टअप की जब बात की जाती है तो स्टार्टअप इज योर ओन इनोवेटिव आइडिया. दैट इज नॉट टू प्रमोट एनी अदर ब्रांड. यू हैव टू क्रिएट योर ओन ब्रांड. सबसे पहले जो हमें समझना है स्टार्टअप कल्चर को, वो ये है कि हमें अपनी कोई ऐसी चीज़ इनोवेट करनी है. जैसे अगर ओरीफ्लेम है तो व्हाई नॉट के सबा का अपना एक ब्रांड हो जिसको कि वो लेके आगे चले. देखें, बात फिर वही आ जाती है कि पहले से बनी हुई चीज़ों को लेके चलना आसान होता है, मुश्किल वहाँ पे होती है जब आप नई चीज़ इनोवेट करते हैं, जब आप अपने आइडियाज़ के साथ कुछ नया लेके आते हैं मार्केट में, उसमें आप कुछ इनोवेटिव देते हैं लोगों को और लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो बनता है आपका अपना ब्रांड. यहाँ पे अभी जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक ये मैं शायद कन्वे करने में कामयाब नहीं हो सकी कि हमें अपने ब्रांड को लेके चलना है, हमें अपना बॉस खुद बनना है. बिकॉज यहाँ पे ओरीफ्लेम हम अगर सप्लाई भी करें वो हमारा बॉस है, वो हम लोग उसके बॉस नहीं है. हम किस तरह अपने बॉस बन सकते हैं? द क्वेश्चन इज दिस. और अगर ओरीफ्लेम जैसी कंपनी
इतना अच्छा सब काम कर सकती है, तो व्हाई नॉट अस? और इसके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको इसी हवाले से बताऊँगी, स्पेशली दोज़ स्टूडेंट्स हू आर इंटरेस्टेड इन कॉस्मेटिक्स या इस तरह के जो भी आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो काम होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो ओरिफ्लेम है, जैसे इसका एक नाम है, हम अपना कोई ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। जैसे सबा, अभी आप थोड़ा-सा मुझे सोच के बताएँ कि अगर आपका अपना एक ब्रांड हो, तो आप उसका क्या नाम रखना चाहेंगी? Sabba's Beauty Hub. ओके, सबस ब्यूटी हब के नाम से देखें, आप इस तरफ अपने ज़हन को लेके आएँ कि आपने अपने लिए ब्रांड बनाना है, अपने नाम का ब्रांड बनाना है। अब सबस ब्यूटी हब जो है वो शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें ऑफ़र करेगी जो कि उसको लगता है कि वो अच्छी कर सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट ब्यूटी में या कॉस्मेटिक्स में या इस तरह की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर है, तो आपको, जैसे आपने बहुत अच्छा सारा रिसर्च किया हुआ है, आई एम रियली ग्लैड कि आप पूरा रिसर्च करके आई हैं आज यहाँ पे, जो भी आप आपने प्रेजेंटेशन दी है, तो आप में पोटेंशियल है। अगर आप इस सब चीज़ का रिसर्च कर सकती हैं, तो आप अगर अपने लिए कोई ब्रांड डेवलप करने लगेंगी, अगर आप इतनी रिसर्च अपने ब्रांड के लिए करेंगी, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप अपने ब्रांड को आगे लेके बढ़ सकेंगी। तो इसमें जो सबस ब्यूटी हब है, जैसे अगर हम इस साइट को लेके चलें, तो सबा ब्यूटी हब के अंदर हम कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। देखिए सबा, हम सब लोग घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हेयर ऑयल्स होते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी हम लोग प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम खुद भी बना सकते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट आपको लगता है कि है, वो बल्क में आपको मिल रही है, तो आप अपने कंटेनर्स ऑनलाइन, आपको कंटेनर्स, अगर आप daraz.pk पे जाएँ, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको डिफरेंट पैकेजिंग में जो है कंटेनर्स मिल जाते हैं इस तरह के, जिसमें ऑयल के भी होते हैं, सोप्स के भी होते हैं। हम होममेड सोप्स बना सकते हैं, बहुत आसान है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे किया जा सकता है। तो आप अपने ब्रांड को आगे लेके आएँ, उसमें आप डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आप घर में बैठ के बना सकते हैं। तो आपका ये सारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि आप अपने नाम से एक ब्रांड लॉन्च करें, तो फिर मैं आपको समझूँगी कि येस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक सही स्टार्टअप हैं जो कि एक नई चीज़ लेके आ रही हैं और आप उसमें क्या दे रही हैं। जैसे अगर सब लोग ही ऑयल बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऑयल बनाते हैं लेकिन शायद उसमें वो सारी क्वालिटीज़ नहीं होती। लेनी है आपने कोई? हाँ, ओके। तो आप क्या चीज़ें दे सकते हैं? देखिए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हम ओरिफ्लेम की देख रही हैं ना, मैं आपको बताऊँ, आजकल ये सब चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं। अगर हम इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करें, तो ये घर से ही सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ सीखना है, तो आई कैन गाइड यू वेरी वेल कि ये कैसे हो सकता है। और अगर आपको कुछ सप्लाई जैसे मिल रही है, जैसे मैंने पहले बात की कि सप्लाई अगर आपको कोई कर रहा है, तो आप अपने कंटेनर्स में अपने नाम के साथ, अपने लोगों के साथ उसको सेल करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये मेरा ब्रांड है और मैंने इसके ऊपर काम करना है। हमारा मसला ये है कि हम दूसरों के ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, लेकिन हम अपने वर्थ नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा, फिर आगे जो से आपने बात की कि वाई ओरिफ्लेम। अब मेरा भी क्वेश्चन यही है सब आपसे कि वाई ओरिफ्लेम? Ma'am, first actually I had the idea of starting an audiobook, but Yeah, couldn't I do remember. that because of certain circumstances. So that is why I switched to this idea. Okay, but do you have any interest in beauty products? A little bit. A little bit. If you have a little bit interest, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसको आगे लेके चलना। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि जो आपका पैशन होता है ना, you should stick to that idea, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाता है। इससे हम फॉर द टाइमिंग हम कहेंगे अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए हम ये कर लेते हैं, अच्छा हम इसको ट्राई कर लेते हैं, हम इसको ट्राई कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा ब्रांड नहीं बन पाता। ब्रांड्स बनाने के लिए हमें बहुत साल मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और उसमें अगर हमें रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे होते, तब भी हमें अपने ब्रांड के ऊपर ही काम करना होता है। जैसे कि मैं अपने ब्रांड के ऊपर ही काम कर रही हूँ, मैं ये एजुकेटर्स के ऊपर ही काम कर रही हूँ, और मुझे ये पता है कि मुझे अपनी कंपनी पे ही काम करना है। मैं और जगह पे भी काम करती हूँ, लेकिन वो मेरे ब्रांड के साथ मुझे प्रमोट करते हैं, कि वो मेरे ब्रांड को नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे हमने ये देखना कि हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी शनाख्त, हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ ही आगे बढ़ना है, और हमें आगे मज़ीद चीज़ें भी सीखनी और अपने स्किल्स मज़ीद सीखने और डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करने, और हमें उनको आगे लेके बढ़ना है। अब मैं अगर आपसे, मुझे नहीं पता अगर आपका कोई पर्सनल रीज़न है, आपने ऑडियो बुक के बारे में जो आपका ख्याल है, वो आपने क्यों उसको स्किप किया? ऐसा क्या प्रॉब्लम्स है? मैंने 2 स्टोरीज की ऑडियो बुक रिकॉर्ड भी कर ली थी, आपने लेकिन मुझसे शेयर नहीं किया? शेयर नहीं की क्योंकि आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट मैम, क्योंकि
एक घर में बैठ के रिकॉर्ड करना कोई आसान काम नहीं है, कभी उधर से आवाज आ रही होती है, कभी इधर से आवाज आ रही होती है, एंड यू कांट जस्ट Absolutely. say the family members to stop talking. Absolutely. I I literally can imagine very felt well. furious to my siblings, just stop talking. I literally recorded it 10 times, one story. ओके, लेकिन आई वुड लव यू टू शेयर द ऑडियो विद मी, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज हमने तो अभी सिर्फ देखना है ना कि आप में कितना दम है, क्या आप इसको कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप अपने जो पैशन है उसके साथ ही स्टिक रहें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपकी जो ऑडियो बुक्स हैं, हो सकता है अगर आप उसके ऊपर 5 साल काम सही से कर लो, आपको अल्लाह ताला आपकी डेडिकेशन और पैशन देखेंगे तो आपके लिए ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे कि आप शायद किसी अलग कमरे में खामोशी के साथ बैठ कर उस पर रिकॉर्ड करने के भी काबिल हो जाएं। और सब भाई, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, हम सबके साथ प्रॉब्लम है। हमें भी अपने बहुत से लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत सी ऐसे हमें काम करने के लिए हमें नहीं ऐसी जगह मिल रही होती जहाँ पे कि हम अब बात कर सकें या प्रोफेशनली उसको परफेक्ट अपने उसके साथ जो है परफेक्शनिज्म के साथ हम आगे लेके बढ़ सकें। तो ये प्रॉब्लम्स तो अगर आपके साथ है तो ये हमारे साथ भी हैं, तो हम आपके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो आपके पास स्किल है उसको आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं आपको उसमें गाइड कर सकूँ और आप उसको आगे लेके बढ़ सकें, ठीक है? अब हम आते हैं, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि ये मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है? यस मैम। अब हम आते हैं अपनी इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो आज मैंने आप लोगों के लिए रेडी की है, बी योर ओन बॉस के हवाले से, कि हमें अपना बॉस खुद बनना है, हमें अपना ब्रांड डेवलप करना है इनोवेशन के साथ, पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तभी हम अपने ब्रांड को आगे लेके बढ़ सकते हैं। जो बिजनेस मॉडल है वो भी एक आर्ट है, पिचिंग योर बिजनेस मॉडल, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग अपने अपने बिजनेस आइडियाज़ लेके आएंगे और प्रेजेंट करेंगे मुझे, आप लोग मेरे साथ, वो आपका असाइनमेंट था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को एक टेम्पलेट बताना चाहिए कि आपको कैसे प्रॉपर्ली, सबने बहुत अच्छा एफर्ट किया, मुझे सबके अच्छे लगे, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको अगर आपने प्रॉपर्ली बनाना हो तो आपने इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आपकी जो बिजनेस मॉडल पिच है वो बहुत क्लियर, कंसाइज और कंपेलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके आइडिया में कि मेरा ये आइडिया है। कंसाइज बिल्कुल जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि कूजे में दरिया बंद होना चाहिए, कम से कम अल्फाज में मैक्सिमम आप अपनी पिच के बारे में अपने बिजनेस मॉडल को पिच करते हैं। कंपेलिंग होना चाहिए, यानी कि इतना टेम्पटिंग, इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी सुनने वाला है वो कहे कि वाह, इसमें दम है, हाँ तो ये कुछ है और इसमें इसका कुछ पैशन है। इसके की एलिमेंट्स जो हैं वो है आपका प्रेपरेशन, यानी कि जब भी आपने अपनी बिजनेस पिच जो है वो बनानी है तो आपको उसके लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे आज आपने काफ़ी अच्छा रिसर्च वर्क किया हुआ था, लेकिन अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से अपना भी ब्रांड लेके आती और आप उसके बारे में बात करती तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। क्योंकि हमारा एंटरप्रेन्योरियल सेशंस हो रहे हैं तो हम लोग इस वक्त इसी की बात करेंगे कि हमने अपने ब्रांड को कैसे डेवलप करना है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट, अभी मैं 1-2 स्टूडेंट्स के सुन रही थी जो प्रेजेंट कर रहे थे एंड दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर पैशंस। जो भी पैशन की बात हुई, तो अगर हम पैशनेट होते हैं तो हमारे अंदर अल्लाह ताला खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि आप ये देखो कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है हम उनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं हम नॉन स्टॉप उनके बारे में बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें पता होता है उनके बारे में, उनकी तमाम डिटेल्स पता होती हैं, हमारी अपनी जितनी भी हमारा पैशन होता है, हमें हमारी पूरी रिसर्च होती है उसके ऊपर और हम उसके बारे में हर वक्त सीख रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो या अपने बिजनेस मॉडल जो पिच कर रहे हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। आजकल तो हमारा ऑनलाइन चुके ये सब कुछ सेशंस हो रहे हैं तो यहाँ तक बात करेंगे, लेकिन जब हम ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं तो फिर हम इसमें आपको ये भी बताते हैं कि आप जब कभी किसी इन्वेस्टर के पास पिच करने जा रहे होते हैं अपना बिजनेस आइडिया, या आप कहीं पे किसी प्रोफेशनल जगह पे जब पिच कर रहे होते हैं तो आपको अपने कपड़ों का अपने अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखना होता है। आपको बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए उस वक्त, और ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू पिच। जब भी अगर जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इवेंट है कि आपको कोई बिजनेस अपनी पिच जो है मॉडल जो है उसको पिच करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यू शुड वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, आपके जूते अच्छे होने चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि जब आप खड़े हो, बिकॉज जब आप पिच कर रहे होते हैं दैट टाइम यू आर स्टैंडिंग समवेयर और आप वहाँ पे खड़े होके पिच कर रहे होते हैं अपने इसको बिजनेस आइडिया को। तो ये सारी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट इज की टू सक्सेस।
Key to success in this pitching your business idea is how you are able to demonstrate improvement and progress in critical elements of the business model by. अच्छा, अब जब भी अपना बिजनेस मॉडल अपना जब भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके ये क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके अंदर क्या, जैसे जैसे SWOT एनालिसिस की बात हुई थी कि जब भी आप किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको उसके तमाम वीकनेसेस, उसके तमाम स्ट्रेंथ्स, आपको अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स सब पता होने चाहिए कि इसके अंदर हमारे पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। उसके क्रिटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये वही बात है जैसे कि आप उसके जो थ्रेट्स होती हैं उसके अंदर, या उसके अंदर ऐसे क्रिटिकली आप अपने हर बिजनेस आइडिया को भी देखते हैं कि हाँ, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकती हूँ, मैं कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हूँ अपने बिजनेस आइडिया के अंदर। तो जब भी आप अपने बिजनेस आइडिया को कहीं पे भी पिच करेंगे तो आप इस काबिल होना चाहिए आपको कि आप उसके बारे में तमाम जो भी फीचर्स या एलिमेंट्स हैं उनको सही तरीके से डिस्कस कर सकें या बयान कर सकें। और वो कैसे होगा? टेकिंग एक्शन एंड गोइंग टू द मार्केट, यानी कि आप एक्शन लेंगे उसके ऊपर और आप जाएंगे मार्केट में और अपनी प्रोडक्ट या जो सर्विस जो भी हो रही है उसके बारे में रिसर्च करेंगे, जाके मार्केट रिसर्च करेंगे और अपने जितने भी आपने प्रीवियस आपका जितना भी एक्सपीरियंस है या जितने भी अभी हमारे लेक्चर्स हुए हैं, जितनी भी डिस्कशन हुई है, आप उसके जो भी आपको फीडबैक मिलता है उससे आप हेल्प लेते हैं कि हम अपने बिजनेस आइडिया अपने को कैसे पिच करते हैं। सबसे पहला जो अब आपका जो स्लाइड बनेगी, अपने ये सब लोग नोट कर लें प्लीज़ कि जब आपकी पहली स्लाइड बनेगी तो उसमें आपका अपना इंट्रोडक्शन होगा कि हु यू आर। जैसे आपका नाम सबा आबिद है तो आपका नाम होगा सबा आबिद और आपकी कंपनी का नाम होगा सबास ब्यूटी हब। तो इस तरह से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन योर कंपनी, और फिर आप अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफली बताएंगे कि ये क्या कर रही है। ये इसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, प्रोडक्ट्स हैं या इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इसके अंदर कोई सर्विसेज हैं, तो ये आपने बताना है वहाँ पे कि मैं इसमें क्या दे रही हूँ। उसी से पता चल जाएगा कि हु यू आर एंड व्हाट यू आर ऑफरिंग। नंबर 2 इज इंट्रोड्यूस योर यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस। फिर आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिटेल्स बताएंगे कि आप क्या यूनिकनेस क्या है आपकी प्रोडक्ट के अंदर या आपकी सर्विस के अंदर जो भी आप करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑडियो बुक्स का भी काम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ यूनिक आपको कर रही है। आप अगर आप बुक्स दे रहे हैं तो वो क्या है उसके अंदर यूनिकनेस, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये हम पहले भी सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये इसलिए दोबारा से सब चीज़ें ब्रीफ करके बता रही हूँ बिकॉज अब जो नेक्स्ट हमारा जो फाइनल सेशन होगा उसमें आप सब इसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अपनी बिजनेस पिच बनाएंगे, अपने बिजनेस आइडिया को बनाएंगे। और ये ख्याल रखिएगा कि जब आप लोग अपना बिजनेस आइडिया पिच कर रहे और बना रहे होंगे तो उस वक्त आप अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, अपने ब्रांड की बात करेंगे। हम किसी और के ब्रांड की बात नहीं करेंगे। हम जिस हवाले से भी काम कर रहे हैं हमें उसी को ही ब्रांड बनाना है और उसी को आगे लेके चलना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ ग्रुप में आप लोग मैसेज करें, मुझसे पूछें। आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हैं तो मुझे लगता है आपको सब कुछ ही आ रहा है, तो इसलिए प्लीज़ आप पूछें अपने। अगर किसी को नाम समझ में नहीं आ रहा, किसी को लोगों की समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ मुझसे पूछें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने ब्रांड का नाम कैसे बना सकते हैं। सब आपका नाम ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप और बेहतर नाम, कुछ ऐसा नाम, थोड़ा सा यूनिक नाम जो कि बहुत कैची हो, बहुत अट्रैक्टिव हो और लोग एकदम कहें कि वाओ, लगता है इसमें कुछ है और आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह से कैची नेम्स होने चाहिए। डिस्क्राइब द वैल्यू of your product and service, your product and service is creating, कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है। जैसे अगर सबस ब्यूटी हब की बात की जाए तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट बिकती है, कोई मुझे बता सकता है हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस नाम पे बिकती है? ब्रांड की बात नहीं कर रही, वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से हमारे माशरे में वो प्रोडक्ट उस एक टैग के साथ बहुत बिकती है? सब आप बता सकती हैं? नो आइडिया। कोई और? एनीबडी एल्स? वाइटनिंग क्रीम्स। आपको पता है कि वाइटनिंग के नाम पे इतना प्रोडक्ट बिकता है हमारे माशरे में क्योंकि हम सबको गोरा होने का शौक़ है और हम सब वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। जो गोरे हैं वो भी करते हैं, जो नहीं है वो भी करते हैं। तो मतलब हम लोग एक ज़हनी गुलामी का शिकार तो हैं एज अ सोसाइटी और एज अ नेशन भी, कि हम गोरों को फौकियत देते हैं कि भाई इसका रंग गोरा है तो बस ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी का रंग, अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया है और हम लोग थोड़ा सा वो जो जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी था कि भाई किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फौकियत हासिल नहीं, किसी अमीर को गरीब पे कोई फौकियत हासिल नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड्स हमने खुद
जो है वो डेवलप किए हुए। जी आयशा, यू वांट टू से समथिंग? आयशा, आपका हैंड रेज हुआ है, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, तो हमारे यहाँ पे हमने ये सारे स्टैंडर्ड्स खुद सेट किए हुए हैं और इस वजह से अब चूँकि स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं तो हम उससे फ़ायदा उठाते हैं और हम ये वैल्यू क्रिएट की कि हमारा गोरे रंग की क्रीम बेचने से हमारा बिजनेस बहुत चलता है और चलता है, आपने देखा भी है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको सवाल ये पूछूं कि आप अपनी प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी वैल्यू क्रिएट करना चाहेंगी, तो आपके पास क्या जवाब है इसका? वैल्यू में उनको फ्री सैंपल्स और टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स दूंगी। अच्छा, वो तो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी ना, वो आपकी वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है वो। यानी कि आप ये कह सकती हैं कि इससे आप के हाथ नरम हो जाएंगे या आपकी स्किन शाइनी हो जाएगी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि लोगों को, जैसे आजकल ड्राइनेस का है तो आप ये कह सकते हैं ये मॉइस्चर करेगी आपके फेस को या आपको, तो ये एक वैल्यू होती है जो आप क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर कि आप क्या वैल्यू क्रिएट करें। सॉरी, स्टैंड आउट करे मार्केट जी में। जी बिल्कुल, तो वो आपने जी स्टैंड आउट करे बिल्कुल। तो वैल्यू का मतलब, मैं ये स्लाइड बनाने का मकसद यही था कि आपको ये बताया जाए कि वैल्यू क्या होती है। जो आप बात कर रही हैं वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, कि हम फ्री सैंपल्स देंगे, वो हम वैल्यू क्रिएट नहीं करती है। वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट के अंदर जो उसके फीचर्स हैं या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्रिएट करते हैं, वो वैल्यू बनाते हैं उसके सर्विसेज में भी और प्रोडक्ट के अंदर भी। तो आपने ये बताना है कि मैं ये जो भी मेरी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है इसके अंदर क्या मैं वैल्यू क्रिएट कर दूँ, ठीक है। डिस्क्राइब योर टारगेट मार्केट, हु इज़ योर कस्टमर। इस पर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, मेरा ख्याल है पहले दिन से आज तक हमने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि आपको अपनी टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपने बहुत अच्छा सर्वे किया हुआ था ओरिफ्लेम के हवाले से, तो आपने वो पूरी टारगेट मार्केट, उसके अंदर आपने एज ग्रुप बताया हुआ था कि इस एज ग्रुप के लोग हैं। एज ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है जब आप पिच कर रहे होते हैं अपना बिजनेस आइडिया, तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसका एज ग्रुप डिफाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं और हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये आपने इसको ऐड करना है स्लाइड को। इसके बाद जो 5th स्लाइड बनेगी, एक्सप्लेन हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर कस्टमर। वही बात आ गई, जैसे आपने बहुत अच्छा इसको एलैबोरेट किया हुआ है अपने उसमें प्रेजेंटेशन में, कि आप किस तरह से जाके अपने कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं। अब रीच आउट करने में हम फ्री सैंपल्स देना उस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हम मार्केटिंग की स्लाइड के लिए उसको संभाल के रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपने कस्टमर को डिजिटल मार्केटिंग से, विजिटिंग से, अपने फ्लायर्स के साथ, वर्ड ऑफ माउथ के साथ आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसको रीच करते हैं, कस्टमर को रीच करते हैं। तो इसका इतना ही सिंपल जवाब है, इसमें हमने बहुत सारी डिटेल्स नहीं ऐड करनी है। बताने का मकसद ये है कि टू द पॉइंट, कंसाइज, और किस तरह से हम इसको ग्रैबिंग कैसे बना सकते हैं। कंपटीटर्स, ये भी हमने लास्ट सेशन में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं, सबसे मेन अगर कोई बिजनेस का जो कामयाबी की जो वजह होती है वो हमारे अपने कंपटीटर्स ही होते हैं। प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द कंपटीटर्स लैंडस्केप फॉर योर प्रोडक्ट सर्विस, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर कंपटीटर्स, कि आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अपने कंपटीटर्स को, हमेशा उनको सामने रखें। आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके कंपटीटर्स का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और जब भी आप स्लाइड बनाएं तो आप ये देखें, जैसे अगर आप सब आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की, तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपके जो कंपटीटर्स की जो स्लाइड बनेगी उसमें आप ये बताएंगे, आप जाके देखेंगे कि कितने लोग मार्केट में इस वक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे ओरिफ्लेम को ले लें, वाई नॉट कि आप ओरिफ्लेम को ही अपना कंपटीटर बना लें, अगर तो आप वो सारी चीज़ें उसमें दे रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऐसी बहुत सी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ये काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। कोई ऑयल बेच रही हैं, कोई क्रीम्स बना रही हैं, कोई ब्यूटी सोप्स बना रही हैं, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे रही हैं। तो आप ये स्लाइड इस तरह से बनाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट हाउ योर कंपनी मेक्स मनी रेवेन्यू मॉडल। जब भी हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो हम कभी भी ये फाइनेंसिस को नहीं भूल सकते और हमें ये बताना होता है कि हम किस तरह से अपनी हम किस तरह से, कितना पैसा है हमारे पास, हमने उसको कैसे यूटिलाइज करते हुए छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि छोटी छोटी डिटेल्स, एक एक चीज़ हमें काउंट करनी होती है, हमें लिखनी होती है कि हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है और हम
हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कितनी कॉस्ट आ रही है, हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारी कॉस्ट क्या है, हमारा रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, हमारा प्रॉफिट क्या जनरेट हो रहा है। तो ये हमेशा से आपने एक फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे भी आप कहेंगे कि हमारा तो सिर्फ आइडिया है, तो हमें तो नहीं पता। लेकिन देखिए, मैंने आपको बर्गर का भी एक आइडिया ही दिया था और मैंने आपको उसके हवाले से कहा था कि अगर आपके पास एक आइडिया भी है तो आपने उसकी भी कॉस्ट बनानी है। और जब तक आप किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं निकालते, इसके ऊपर काम नहीं करते, मनी मॉडल के ऊपर काम नहीं करते, उस वक्त तक आप एक अच्छा बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो पहले आपके जहन में जो भी प्रोडक्ट है, जैसे अभी अगर हम सबा के प्रोडक्ट्स की बात करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, वो तो आसान था कि हमने एक ब्रांड से डिस्काउंट रेट्स पे प्रोडक्ट्स खरीदे और आगे बेच दिए। लेकिन अगर हमने अपना ब्रांड डेवलप करना है तो फिर हमने ये देखना है कि अगर हम किसी से सप्लायर से भी अगर वो क्रीम्स या वो की प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं तो वो हमें कितने की पड़ रही है, अगर हम बल्क में ले रहे हैं तो वो कितने की पड़ रही है, हमारे इसके ऊपर जो पैकिंग है उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, बॉटल्स के ऊपर, लेबलिंग के ऊपर, और फिर उसके बाद अगर हम जब उसको फिल करते हैं तो उसके बाद क्या खर्चा आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि अब ये हमारी कॉस्ट निकल गई तो अब हमने इसके ऊपर कितने पैसे हैं जो प्रॉफिट में कमाने हैं। यानी कि आपने सिर्फ अपनी कॉस्ट तो नहीं निकालनी ना, आपने उसके ऊपर कुछ अपनी जो मेहनत की है आपने उसके तो पैसे लेने हैं। तो वो कैसे लेने हैं, वो आप उसके ऊपर एक अपना रखेंगे कि हाँ, ये मेरी अगर कॉस्ट आई है इसके ऊपर 20 रुपये, तो मैं इसके ऊपर 15 से 18 रुपये का प्रॉफिट रखूँगी। तो इस तरह से आप इसको करेंगी और फिर आप अपना इसको आगे लेके चलेंगी। तो आप इसको डिफरेंट भी कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, यानी कि हमने जितनी सर्विसेज दी हैं या हमने जितनी मेहनत की है, हम उतना ही उसके अपना प्रॉफिट रखेंगे उसके अंदर। या अगर हमारे साथ कोई टीम काम कर रही है, जैसे हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो जो आपके साथ कहेंगे चले मैं आपको लेबल कर दूंगी, तो आप फिर उसका भी हिस्सा अलग करेंगे कि ठीक है, अगर आपने आपके उसमें आपके और टीम के लोग आ गए हैं तो फिर आपने कैसे उनका हिस्सा निकालना है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही प्लान आउट करनी होती हैं, तभी आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आगे लेके चल सकते हैं। और अगर आपने किसी से इन्वेस्ट भी करवाना है तो आपके पास ये सारी डिटेल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, तभी जो इन्वेस्टर है वो आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे आपके पास अगर अभी कैपिटल मनी नहीं है और आपने किसी से आप कह रही हैं कि मैं अगर अपनी ये बिजनेस पिच वहाँ पे अपना बिजनेस मॉडल पिच करूँगी और मैं हो सकता है कि 2-3 लाख रुपए ले लूँ कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करना चाह रही हूँ। आपका पैशन, डेडिकेशन और आपका पूरा बिजनेस प्लान देखते हुए हो सकता है आपको कोई 3 से 5 लाख का इन्वेस्ट भी कर दे कि भाई ठीक है, क्योंकि उसको उम्मीद होगी कि हाँ, ये पैसे इसमें से मुझे वापस मिलेंगे पैसे। तो इस तरीके से ये बिज़नेस जो पिच होती है और ये जो इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी बातें हैं, कॉस्ट, ये इस तरीके से चलता है। इसके बाद आपकी एक और जो स्लाइड बनेगी वो है समरी ऑफ प्रोग्रेस। अच्छा, अब ये ये आपके जो जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ, आपको ये स्लाइड्स पे काम करना है और आप जितने भी लोग इस सेशन में मौजूद हैं वो सब इसके ऊपर काम करते हुए अपनी स्लाइड्स चाहे आप ऐसे ही रख लो और इसी तरीके से पूरे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्लाइड्स बनाएंगे और इसके बाद मैसेज शेयर करेंगे। तो आपने उसमें ये इस स्लाइड के ऊपर ये लिखना है कि जब आपने ये सेशंस ज्वाइन किए थे उस वक्त से लेके आपके बिजनेस आइडिया से लेके और जितने भी आपके मेंटोरिंग और कोचिंग सेशंस हुए हैं, इन्होंने आपको किस तरीके से हेल्प किया है। क्या आपको ट्रेनिंग मिली है, एडवाइस मिली है, क्या आपको कोई डायरेक्शन समझ में आई है, कोई मोटिवेशन मिली है, क्या इन सेशंस ने आपको सपोर्ट किया है या आपके पोटेंशियल को जाना है या आपको गोल सेट करने में कोई मदद की है, क्या आप सही डायरेक्शन पे सक्सेस की तरफ चले गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसमें मेंशन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ग्रुप के अंदर। टीम की हमेशा बात करते हैं हम लोग, टीम प्लेयर्स जो होते हैं, टीम प्लेयर्स आपकी जो मैनेजमेंट टीम के हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं और एक्सपर्टीज़ होती हैं जिनको के हम इग्नोर नहीं कर सकते और उनके बगैर हम अपने बिजनेस को आगे लेके बढ़ नहीं सकते। अब आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग एक टीम है जो काम कर रही है और अगर इसमें से एक भी जिग्सा पजल निकल जाता है तो सारी टीम जो है वो गिर जाएगी, तो सारा आइडिया गिर जाएगा। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आप समझते हैं कि आपकी टीम के अंदर आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो आपके जहन में ज़रूर होते हैं ऐसे लोग जब आप अपना बिजनेस आइडिया लेके आते हैं कि भाई ये लोग हमारे साथ बहुत अच्छा चल सकते हैं और हम इनको ये रोल्स देंगे। और अगर आपके पास अभी कोई नहीं भी है तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अगर आप सबा का ही प्रोडक्ट उठा लें, सबा का ही एक ब्रांड ले लें, तो सबा के ब्रांड में हमें क्या कौन से लोग चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटियर्स चाहिए हमें मैनेजमेंट टीम के अंदर। इसके अलावा हमें उनके
वो लोग जो सप्लाई कर रहे हैं उनको वो चाहिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको उनकी जो पैकिंग है उसके अंदर मदद कर रहे होंगे। तो इस तरह डिफरेंट लोग होते हैं आपकी टीम के अंदर जो कि, और हर आइडिया की अपनी नौइयत है टीम की, जो कि वो अपने तरीके से करता है। फाइनेंसेस की बात फिर हम हमेशा करते हैं कि फाइनेंसेस आपके अपनी तमाम फाइनेंशियल डिटेल्स, प्रोजेक्शंस ऑफ योर बिजनेस, जहाँ जो भी आपने की है वो आपको देनी पड़ती है। जैसे अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया तो आपके पास जो आइडिया है आप उसके हवाले से जो भी मैंने भी आपको बताया, कॉस्ट वगैरह जितनी भी हमने बात की, वो सब आप यहाँ पे एक फाइनेंसेस की स्लाइड बनाएंगे और आप बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और वो क्या कॉस्ट आ रही है, और आप उसके अंदर से अपना क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और प्रॉफिट क्या उसमें से निकालेंगे और किस तरह से उस प्रॉफिट को अपनी टीम में शेयर करेंगे। एक्सप्लेन योर फंडिंग में, अच्छा जैसे अगर आपने किसी इन्वेस्टर से अपनी फंडिंग करवानी है तो आप वहाँ बताएंगे कि जी मेरी टीम में इतने लोग हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हम सब पैशनेट हैं और सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है, और हमें ये इतने पैसे चाहिए अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, इसकी मार्केटिंग करने के लिए, और अपनी टीम, हमारी टीम को किस किस हवाले से किस तरह से ज़रूरत है। जैसे अगर आपने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कोई कैटलॉग बनवानी है, वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए भी आपको टीम की ज़रूरत होगी, जो कि आपकी टीम मेंबर की ज़रूरत होगी जो कि आपको टेक्निकली सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, वेबसाइट्स ऐसे फ्री में नहीं बनती हैं, उसके लिए भी आपको, तो आप जब भी फंडिंग के लिए जाएंगे आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी क्या नीड्स हैं। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू डेवलप एंड प्रैक्टिस योर पिच। तो मैंने आपके साथ सारा टेम्पलेट शेयर कर दिया है और अब आप इसको फॉलो करते हुए अपने बिजनेस मॉडल, अपने जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उसका बिजनेस मॉडल बनाएंगे और उसको कहीं पे भी पिच करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग हमारे सामने ही नेक्स्ट सेशन में सब अपनी अपनी पिच बनाएंगे और सब अपनी अपनी बिजनेस आइडिया को पिच करेंगे, यानी कि कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आप लोग बताएंगे। Thank you so much. So this is the end of this presentation. जी उम्मे कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस थे और वो मुझे आपसे कंफर्म करने थे, उनके आंसर्स। आपने कहा, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस आइडिया है तो उसको लेके थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। आपने कहा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू जो है वो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे भी रख सकते हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या नहीं। तो आई थिंक हमें ब्रेक इवन रखना चाहिए कि जितनी हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतनी ही हम अगर अवेल कर सकें, तो आई थिंक ब्रेक इवन होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ जो थी मैम वो ये थी कि कंपटीटर्स जो हैं वो हमने अपनी डिफ़ाइन करने हैं कि हम उनसे किस तरीके से डिफरेंट है। लाइक मार्केट में ऑलरेडी ही एक कंपटीटर है इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो ऑनलाइन सेल करते हैं और उनकी और मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। उनका ये है कि आप जो है वो प्रोडक्ट्स विद इन 2 days ही यूज़ कर सकते हैं, और मेरी वाली प्रोडक्ट जो है वो आप फ्रीज करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका लाइक एक्सपायरी डेट का इतना खास इशू नहीं होगा कि आपकी ये जल्दी एक्सपायरी हो जाएगी। तो क्या कंपटीशंस में जो है हम लोग ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि हम लोग उनसे अपने कंपटीटर से कैसे डिफरेंट हैं? जी बिल्कुल, आप लोग यही डिफाइन करेंगे कि आप लोग अपने कंपटीटर से कैसे डिफरेंट हैं, बिकॉज यही उन्होंने देखना होता है और ये उन्होंने देखना होता है कि क्या आपकी मार्केट के ऊपर नज़र है। क्योंकि जब हम बिजनेस लाइन के अंदर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे यही सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि हम अपने कंपटीटर्स को कितना जानते हैं और हम अपने आप को कैसे उनसे डिफरेंट बना रहे हैं और कैसे बेहतर बना रहे हैं। खाली डिफरेंट नहीं, और हम कौन सी ऐसी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं देख रहे हैं। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स ही हमें मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है, हमें उनसे आइडिया भी मिल जाता है। मार्केट में ऑलरेडी वो सब लोग काम कर रहे होते हैं तो हम उनको कम्पीट करने के लिए आ जाते हैं मार्केट के अंदर, और फिर हम उन्हीं के आइडिया से इंस्पायर होते हैं। देखिए एक तरह से मैं समझती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव इन सब बातों को लेके चले तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन होते हैं, ठीक है, और हम उन्हीं की तरह का काम अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हीं का काम अपने तरीके से बेहतर तरीके से, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन के बाद और उसके अंदर कुछ उसका कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल उसका हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मे बी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पेप्सी और कोक की बात की थी कि दोनों की मार्केट्स मतलब लोग पीते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कोक को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पेप्सी को प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप देखें, हज़ारों ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि हज़ारों से भी ज़्यादा, कि कितने ब्यूटी कंपनीज हैं लेकिन सब चल रही हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर कंपटीटर्स आ गए तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगी या नए लोग मार्केट में नहीं आएंगे, नए लोग भी मार्केट में आएंगे।
तो कॉम्पिटिटर्स को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी और बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी हमारी मदद करते जी हैं। मैम, मैं यही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें जस्ट वहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन करनी है कि हम लोग उनसे डिफरेंट क्यों हैं या आप हमें क्यों चूज करेंगे। बिल्कुल जी, और जो बिल्कुल आपने बिजनेस मॉडल बनाया उसमें एक पार्टनर की भी थी। अगर हमारे बिजनेस में पार्टनर ना हो, सपोज कि मैं किसी को पार्टनरशिप में नहीं रखती, मैं खुद कर रही हूँ, तो क्या हम वहाँ पे में चीज़ एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, आप अगर पार्टनर तो आप नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मेरे बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी पसंद करती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपके पार्टनर्स आ जाते हैं फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें आप करना चाह रहे होते हैं शायद वो उस तरीके से किसी बात पे एग्री होते हैं, किसी पे नहीं होती। लेकिन अगर आप एक टीम बिल्ड कर लें तो जो टीम मेंबर्स हैं दे आर नॉट योर पार्टनर्स, ये बात आप याद रखें। यू आर द लीडर, आइडिया आपका है, आप उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो पार्टनर्स नहीं बनेंगे। ये याद रखें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीम मेंबर्स एंड पार्टनर्स। पार्टनर्स वो होते हैं जो कि फिर हर चीज में आपके साथ होते हैं, वो फिर उसमें बहुत सारा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो कि कामयाब भी हैं, लेकिन जी मैम, वो चीज़ तो हम अपनी टीम में डिफाइन कर देते हैं ना। जब मैंने स्लाइड्स बनाई है तो मैंने वो चीज़ अपनी टीम में डिफाइन की है कि मेरी जो टीम है उसमें शेफ आ सकते हैं, उसमें जो है वो मार्केट पैकिंग के लिए आ सकते हैं, उसकी डिलीवरी में आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो चीज़ जो है वो मुझे उधर डालने की ज़रूरत है मॉडल में, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपका ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अब बस आप अपनी स्लाइड्स को ना, आपने मुझे पूछा भी था तो मैंने आपको ये कहा था कि आप अपनी स्लाइड्स को इसके मुताबिक, अब मैंने इसलिए ये टेम्पलेट लेके आई थी जी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आपको पता चल जाए जहाँ से नंबर 1 पॉइंट शुरू हुआ है वहाँ से लेके जो लास्ट पॉइंट तक आप लोगों ने उसको वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है जो कि बिल्कुल इसमें कोई भी नहीं, किसी को छूट होगी, और मैंने सबसे पूछना है और मुझे सबका चाहिए ये जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो पिच है, बिकॉज अब आप अपनी फाइनल पिच बनाएंगे, क्योंकि हम 7 वीक्स से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और 7 वीक्स हो चुके हैं हमें। अब तक मुझे लगता है कि हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और हमें अब समझ भी आ रही होगी अपनी डायरेक्शन। तो इसका भी आप मुझे वहाँ पे फीडबैक देंगे। तो देखिए, एक फीडबैक स्लाइड मैंने डाल दी है उसमें, कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितनी समझ आई है और आप लोग अब क्या करेंगे इसके बाद। तो मैम राबिया, आपकी इजाजत से मैं अगर एक चीज इसमें से ऐड करना चाहूँ। जी प्लीज आप। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये इन्होंने एक बात कही है ना कि अगर हमें लग रहा हो कि हम प्रॉफिट्स नहीं अर्न करेंगे और ब्रेक इवन पे रहेंगे, हाँ। मैं बस ये बात कहना चाहूंगी कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें आप इतनी मेहनत, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतने रिसोर्सेज, इतना वक्त लगाएं और आपको खुद ही उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि जरूर हर बिजनेस प्रॉफिटेबल ही होता है, बिजनेस में लॉस भी होता है, बिजनेस बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, बिजनेस बंद भी हो जाते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अभी जब आप शुरू करने लगी हैं तो यू शुड ओनली एम फॉर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कम हो सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा ना हो, लेकिन प्रॉफिट होने चाहिए। ये हो सकता है कि आप अपने ज़हन में रखें कि 6 मंथ्स आपका इन्वेस्टमेंट। एक मिनट में बस बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप कर लीजिएगा। मैं वैसे जनरली सबके लिए बात कह रही हूँ कि ये मुमकिन है कि आप अपने लिए 6 माह का एक ऐसा पीरियड रख लें कि इसके अंदर हम अपने ब्रेक इवन पे आएंगे और इसके बाद प्रॉफिट शुरू होंगे। ये हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा। ऐसे होता है, 1 साल का भी हो सकता है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। लेकिन व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ वेंचर, तो फिर आप ऐसे, मतलब हो सकता है आपका मतलब ये ना हो, लेकिन जो मुझे समझ आई है मैं उसके मुताबिक आपको गाइड करूँ कि ये आप ना कहें, ना ही आप सोचें, ना ही ऐसे प्लान कीजिए कि अगर प्रॉफिट ना भी हो और हम सिर्फ ब्रेक इवन पे रहें। नहीं, एम फॉर द हाईएस्ट प्रॉफिट्स, लेकिन हो सकता है कि आप उसको अचीव कर पाए या ना कर पाए। इसके लिए फिर आप बाद में जो है वो देखते रहेंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम असेसमेंट्स होंगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, मैं भी मैम यही कहना चाह रही थी, ये बिल्कुल मेरा भी यही पॉइंट था कि हम पे अगर हमें लगता है कि हम इसमें अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो फिर हम उस तरफ हम तो कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आग जल रही है तो हम कभी भी उस तरफ नहीं जाते। तो हमेशा ठीक है, हमें रखना चाहिए ज़हन में, लेकिन हमें इतना पैशनेट और इतना डेडिकेटेड होना चाहिए और हमें पूरी कमांड होनी चाहिए अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर कि हमें पता हो कि नहीं, हमें इसमें लॉस नहीं होना। तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ते हैं ना।
जी मैम, मैंने ये नहीं कहा, मैं जस्ट ये कह रही थी कि जो हमने स्लाइड्स आपको बनाकर देनी है उसमें जो है हम लोगों को अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिकली बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमने स्टार्ट नहीं लिया अभी जस्ट जो है हम अपने आइडियाज़ को जो है प्योरीफाई कर रहे हैं, आइडियाज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि वहाँ पे जो हम स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो उस स्लाइड में अगर हम लोग अभी फिलहाल उसको ब्रेक इवन पे ही रखें कि जितनी कॉस्ट है, आई नो कि हम लोग अर्न भी करेंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि हम लोग जाहिर है इसको लेके चल रहे हैं। सो मैंने बस ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि इस चीज़ पे लेके कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ज़रा सा कंफ्यूज है कि अभी बिजनेस मॉडल हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग कॉस्ट तो चलो ठीक है हम डिफाइन कर सकते हैं, बट रेवेन्यू किस तरह डिफाइन करें। तो मैंने कहा था आप ब्रेक इवन ही रख लो। बिल्कुल, आप अभी थोड़ा इसको सपोजिंगली करेंगे ना, कि आप सपोज करेंगे एक अमाउंट के, आप देखेंगे और यही है कि रिसर्च करेंगे और आप देखेंगे उसके बाद कि भाई मैं इसको कैसे आगे लेके चल सकती हूँ। जी नाजिया, यू वांट टू से समथिंग? नाजिया नवाज, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू नाजिया? आई एम फाइन, थैंक्स मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी मैंने इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है, और सबा ने भी किया है, तो आप कह रही हैं सब करेंगे और जिन्होंने कर दिया है वो दोबारा करेंगे यहाँ पे आके? देखिए, आपने नाजिया जो बनाई हुई है ना, आप सिर्फ ये देख लो क्या वो स्लाइड्स हो सकता है कि आपकी परफेक्ट हो, उसमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा हो, उसको थोड़ा कम कर ले, कंसाइज कर दे, जैसे मैंने आपको पहला बताया। दूसरा ये कि आप अपनी उन स्लाइड्स को बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए, जो कि मैंने आज आपके साथ टेम्पलेट शेयर किया, उसको फॉलो करते हुए आपने बस वैसे ही बनाना है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल पेज आ जाए, ठीक है? तो उसमें से जो फालतू चीज़ें वो निकल जाएंगी। जी, मैंने शेयर भी की थी स्लाइड्स, क्या आपको याद है कि वो ठीक थी? मुझे थोड़ा पता चल जाता कि मैंने जो उसमें चेंजेस लाए हैं वो कैसे हैं, ठीक है? वो ठीक थे, लेकिन जिसका मैंने इसलिए आज ये उम्मे कुलसूम ये रखा हुआ था आज का सेशन, ताकि आप लोग सिर्फ इसको देख लें कि आपने बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखनी है, बहुत उसको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जाना, बहुत सिंपल आपने अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी है उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए। आप लोगों के बिजनेस आइडियाज़ भी अच्छे हैं, आप लोगों का काम भी सारा अच्छा है, आपको समझ भी आ रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहूँगी कि अब आप उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए मेरे साथ अपने प्रेजेंटेशंस दोबारा शेयर करें, जिन्होंने पहले भी की थी, ठीक है, वो सब दोबारा शेयर करेंगे। और इसके ऊपर आप लोग लिखेंगे कि फाइनल असाइनमेंट, इसका जो सब्जेक्ट आप लोग मुझे ईमेल करेंगे, दैट विल बी फाइनल असाइनमेंट, ठीक है? ओके, थैंक्स मैम। नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम, जो आपने फाइनेंस का बताया है उसके अंदर हम लोग अपनी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कुकिंग से रिलेटेड है, तो मैं उसमें अपनी जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है प्रॉपर्ली जिस तरह से मैंने बनाना है, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ उसमें? जी बिल्कुल जी, जो भी आपका फाइनेंसेस है उसमें जितनी भी आपकी जो कॉस्ट आ रही है चीज़ों के ऊपर, बिल्कुल आप उसके ऊपर अपनी लेकिन वो आप अपने लिए लिखते हैं, जो कॉस्ट होती है ना वो सारी आपकी, आपने एक रफ आइडिया अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक रफ आइडिया देना है, वो जब मैं आपको पूछूंगी कि वो आपके पास लिखी होनी चाहिए डिटेल्स अपनी, जितने भी आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी किचन की आपकी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके पास रिटन आपके हाथ में होना चाहिए, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे आप ये कहोगी कि जी मेरे इस चीज़ के ऊपर मेरे ट्रांसपोर्टेशन पे आ रहा है, या मेरा इसके ऊपर मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना खर्चा आ रहा है, उसमें आप सिर्फ चीज़ों के नाम मेंशन करोगी, प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बिल्कुल ब्रीफ करके। फिर मैं जब आपसे अगर डिटेल पूछना चाहूँ तो वो आपको पता होना चाहिए जी मेरे ट्रांसपोर्टेशन पे ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये आ रहे हैं, मेरी मार्केटिंग के ऊपर ये आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर इस तरह से आप वो चीज़ें पूरी डिफाइन करोगे, यानी कि आपको सब पता होना चाहिए। बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द बिजनेस पिच, तो उस वक्त वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं उसमें बतानी होती हैं, ठीक है? जी, वो आपके अपने लिए होता है, नो प्रॉब्लम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो आज का जो सेशन है, क्योंकि अब तो बिल्कुल हम लोग फाइनल की तरफ चले गए हैं, और मैं यही चाहूँगी कि ये जो सर्टिफिकेशन से पहले आप लोग हमारे साथ अपना कुछ प्रैक्टिकल वर्क शेयर कर दें, ठीक है? और जो लोग ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं अभी से ही, और मैंने बल्कि उस सेशन में भी कहा था कि आज से ही इसको स्टार्ट कर दें। कितने लोगों ने अभी तक इसको आइडिया स्टेज से निकाल के और प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है? चलें ठीक है, अब मेरे सेशन का भी टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज़ आप फोकस रहिएगा अपने इसके ऊपर, और अपने ही ब्रांड को बनाना है, और अपने ब्रांड को ही डेवलप करना है, और अपने ही ब्रांड को लेके चलना है। प्रैक्टिकल आपका यही है कि आप इसको स्टार्ट करें। जैसे कुछ बच्चियां हैं यहाँ पे जिन्होंने प्रैक्टिकली कुरान क्लास की शुरू करने की कोशिश की थी, और मैंने उनको कहा था कि रमज़ान का टाइम है तो आप अपने कुरान क्लास या कुरान एकेडमी जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अभी मुझे नहीं पता कि वो क्लास में हैं या नहीं है,
तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि क्या उनका वो जो बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया क्या वो शुरू हो गया या नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली शुरू कर दिया था और उन्होंने मेरे साथ अपने सोशल मीडिया के जो थे लिंक्स वो भी शेयर किए थे। तो जब भी आप लोग कोई भी काम करें तो उसके सोशल मीडिया अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया उस पर काम, तो वो मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दें ताकि मैं जाके चेक करूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको दोबारा से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक और सब दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफ़िज़।